So today we are going to start the numerical problem on your ferromagnetic on magnetic material. So see on page number 263, your problem number 7. In that problem number 7, you have a plate of magnetic material of size. उसका size दिया है 10 centimeter multiplied by 0.5 centimeter multiplied by 0.2 centimeter. Length, breadth and thickness दिया है. Means what I can say that the volume of plate is given 10 centimeter multiplied by 0.5 centimeter multiplied by उसका thickness दिया है 0.2 centimeter. Is it right? So I can find the volume. Procedure 0.5 into 10. इसका प्रोडक्ट आएगा 5 multiplied by 0.2 centimeter cube. So 5 into 0.2. 5 into 0.2 means वो आएगा आपका 1 centimeter cube. 1 centimeter cube इसका मतलब है if I want to convert into meter 10 raised to minus 6 meter cube. यह अगेन क्या होगा? Clear? That is located in the magnetizing field 0.5 into 10 raised to 4 ampere per meter. Magnetizing field H 0.5 ampere meter raised to minus 1. Then magnetic moment is given, and that magnetic moment is given as your magnetic moment of that plate, small m weight is given, which is equal to nothing but 5 ampere meter square. And you have to find out the magnetic induction in the rod. आपको magnetic induction in the rod find out करना है. Clear? See here now. What things are given? You have given H. Magnetic intensity. M net is given. Volume is given. M net and volume is given. Means you can find out capital M. That is magnetic intensity. So magnetic intensity is M net multiplied by volume. So M net multiplied by volume means I can put M net is 5 divided by volume is 1 into 10 raised to minus 6. So your M value will become 5 into 10 raised to plus 6 ampere meter square. Sorry, ampere per meter. That is your magnetic intensity or magnetization. Means मुझे M मिल गया. Clear? Now, अभी मुझे M पता है, H पता है, and I want to find out the value of B. तो हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? Relation between H, M and B. ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. Clear? तो वो कौन सा फॉर्मूला है आपका? H is equal to V upon mu0 minus M. ये फॉर्मूला है. इसमें मुझे सॉल्व करना है V. So I can modify the formula. What I do? I will write down V upon mu0 is equal to H plus M. तो मेरा V क्या हो जाएगा? V is equal to mu0 into H plus M. Got it? अभी H का वैल्यू मेरे पास है 0.5 and here I am getting 5 into 10 raised to 6. Is it right? I am getting that much. Okay. Now I am going to use that formula here. So mu0 value है आपका. mu0 value is 4 pi into 10 raised to minus 7 plus H value है 0.5 प्लस यहाँ पे वैल्यू आ गया आपका here 5 into 10 raised to plus 6. Is it right? This value I am getting here. Fine. एक मिनट का H का वैल्यू. So H मैंने गलत लिखा है यहाँ पे 0.5 into
10 raised to 4 एम्पियर मीटर रेस्ट टू माइनस मीन्स यहाँ पे आएगा 0.5 इंटू 10 रेस्ट टू 4 प्लस 5 इंटू 10 रेस्ट टू 6। इज इट राइट? नाउ आई विल ऐड दिस टू क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे 10 रेस्ट टू 4 है, यहाँ पे 10 रेस्ट टू 6 है। Is it right? So I will take 10 raised to 4 common quantity. So what I will write down here? See here, I will write down B is equal to 4 pi into 10 raised to minus 7 into 10 raised to 4 common quantity. Bracket में क्या बचेगा? 0.5 plus यहाँ पे 5 plus into 10 raised to plus। Clear? तो क्या रहेगा? 4 pi into 10 raised to minus 3 minus 7 plus 4 minus 3 और यहाँ पे देखो what I am getting here now, यहाँ पे 500 plus 5.5 so 500.5 ये आ गया। So what I write down now here 4 into this, so 4 into this here 4 5 are 22 carry, यहाँ पे लिख देंगे 0 20 5 into 10 raised to minus 3। क्लियर? तो फिर अभी इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग 0.05 पाई की वैल्यू 3.142 into 10 raised to minus 3। ये माइनस 3 है, इसलिए यहाँ पे यह 3 से डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर देंगे। सो व्हाट आई एम गेटिंग 2.002 into 3.142 and now I am going to do this multiplication। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद I will get the answer। मुझे आंसर मिलेगा I will do on my mobile phone। So what answer I will get it? Just I will check it, the answer 2.002 multiplied by 3.412, right? Answer I am getting 6.830। B is Weber per meter square। ये आ गया मेरा आंसर। वहां पे बुक में आपको गलत आंसर दिया है, so don't follow that answer, right? Then the next answer we can say that here the problem number 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या दिया आपको? ए रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी आपको वहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवन 8.25 सेंटीमीटर स्क्वायर which can be written as 0.25 into 10 raised to minus 4 meters square। यह आ गया मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया। उसके बाद लोकेटेड इन 4000 एम्पियर मीटर रेज़ टू माइनस 1 मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन H zone। 4000 एम्पियर पर मीटर। ओके, देन magnetic flux passing through the rod is आपको magnetic flux phi which is equal to 25 मीटर, right? उसके बाद 25 into 10 raised to minus 6 25 into 10 raised to minus 6 मीटर। ओके, अभी आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी मींस म्यू आर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी साथ, ओके, एंड इसके बाद है मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड। मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड मींस आपको फाइंड आउट करना है कैपिटल। इज इट राइट? नाउ फर्स्ट आई विल फाइंड आउट, मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है। सो व्हाट आई फाइंड आउट? आई विल फाइंड आउट दी मैग्नेटिक इंडक्शन। Magnetic induction is equal to magnetic flux per unit area। Magnetic flux दिया है मुझे 25 into 10 raised to minus 6 divided by 0.25 into 10 raised to minus
I will write down here 25 into 10 raised to minus 6 divided by 25 into 10 raised to minus 6. ये डेसिमल पॉइंट माइनस टू यहाँ पे ऐड होगा तो माइनस सिक्स कैंसल 25 कैंसल आई गेट बी वैल्यू इज 1 वेपर पर मीटर स्क्वायर. ये हो गया मेरा बी. ओके, अभी मुझे h पता है, b पता है, so I'll find out value of m. Clear? So I'll write formula. H is equal to b upon mu 0 minus m. मुझे फाइंड आउट करना है m, तो इस m को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगी. m is equal to b upon mu 0 minus h. b कितना मिला 1 डिवाइडेड बाय 4 pi into 10 raised to minus 7 minus 4,000. Clear? So I'll write down minus 7 goes to numerator plus 7 4 pi 12.56 minus 4. Clear? Is 10 raised to 7. I will write down as here as a 100 divided by 12.56 into 10 raised to 5 minus 4. Is 100 divided by 12.56 correct? Is it right? Well, or okay, ऐसा करेंगे. So I will get the value of your magnetization. So I am going to solve this value. तो देखो मैंने अगर ऐसे solve किया, एक मिनट, इसका रेसिप्रोकल लिया मैंने, यहाँ पे 10 raised to 7 नहीं रखा, इसका रेसिप्रोकल लिया 1 upon 12.56, तो उसका रेसिप्रोकल आता है 0.0796. ये मेरा रेसिप्रोकल आ गया 1 into 10 raised to 7 minus 4. Is it right? तो इसका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होने के बाद मैंने अगर 3 पावर से एब्सॉर्ब किया था, व्हाट आई गेट इट 79.61 into 10 raised to 4 minus 4,000. Clear? So what I write down here, I will write down here as a 10 m is equal to 10 raised to 4 पावर कॉमन निकाला तो मुझे बचेगा अंदर 79.61 minus 0.4. तो वो आएगा 10 raised to 4 into 75.61. Is it right? Means what I write down 7.561 into 10 raised to 5 ampere per meter. ये आ गया मेरा वैल्यू ऑफ m. Is it right? Sorry. 0.4 सब्ट्रैक्ट करना, तो ये 79 बचेगा, यहाँ पे 2 आएगा. So this much your value of got it? Okay. ये हो गया value of m. Now I want to find out the value of mu r. मुझे mu r वैल्यू निकालना है. अभी इस mu r वैल्यू निकालने के लिए हमने कल एक रिलेशन देखा था, v is equal to mu 0 mu r h, और अभी निकालना है मुझे mu r. So what I write down, mu r is equal to b divided by mu 0 h. So I put the value, b value मेरा कितना आया था, b value आया था मेरा 1 4 into 10 raised to minus 7 multiplied by 4,000. तो यहाँ पे what I write, ये 3 0 यहाँ पे एब्सॉर्ब हो गए, मीन्स आ गया -4. So what I am getting 1 upon 16.5 into 10 raised to minus 3. -3 जो न्यूमरेटर में चला जाएगा तो वो बन जाएगा 1000 upon 16.5. And now I will do that 1000 upon 16.5. अगर मैंने सॉल्व कर दिया तो I will get the value as a 198. लॉग टेबल से मैंने अगर उसको सॉल्व किया तो I will get it mu r is equal to 198. Okay, अभी मेरा mu r 198 मिल गया.
psi is equal to mu r minus 1. mu r मुझे मिला है 198 minus 1, तो मुझे psi की वैल्यू मिल गई 190. क्लियर? तो इस टाइप में आपको बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ठीक है. उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 जो है, दैट प्रॉब्लम नंबर 5 इज योर आउट ऑफ सिलेबस. तो मैं चली जाऊंगी अभी प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ. So now I am going to consider problem number 6. Problem number 6 देखो अभी. Electron in an atom revolving around the nucleus in a circular orbit of radius 5.3 into 10 raised to minus 11 meters. Problem number 6 radius दिया है 5.3 into 10 raised to minus 11 meters. Okay. With speed of electron दिया 2 into 10 raised to 5 meter per second. By this speed, your electron is revolving. Not 5, it is 10 raised to 6. उसके बाद find the resultant orbital magnetic moment and angular momentum of the electron. आपको find out करना है ML and LC. Angular momentum and orbital magnetic moment of the revolving electron. Now, orbital magnetic moment of a revolving electron, you have a formula 1/2 e half. E का मतलब है charge on electron. Second is that 1/2 charge on electron is 1.6 into 10 raised to minus 19. Speed is 2 into 10 raised to 6. Radius is 5.3 into 10 raised to minus 11. ये 2 गया कैंसिल. प्रोडक्ट रहेगा सिर्फ 1.6 into 5.3 multiplied by power minus 11 minus 9 minus 30 होगी. minus 30 plus 6 means 10 raised to minus 20. और इसका प्रोडक्ट 16 से मल्टीप्लाई करते हैं. 16 3 जा 48 4 कैरी 16 5 जा 80 80 plus 4 84 which is 8.48 into 10 raised to minus 24 orbital moment that is ampere meters. तो ये आ गई मेरी orbital magnetic moment. Is it right? Then अभी मुझे करना है angular momentum. उसकी angular momentum निकालनी है. So for angular momentum, I write formula according to your board second postulate. Angular momentum is mPdr. mP is nothing but the mass of electron. Mass of electron 9.1 into 10 raised to minus 31. Velocity it is 2 into 10 raised to 6. Then radius. Radius हमारा कितना है? 5.3 into 10 raised to minus 11. So 5.3 into 10 raised to minus 11. देखो अभी कौन सा प्रोडक्ट करना है? 2 into this. So what I am getting? 18.2 into 5.3 into सारे पावर minus 31 minus 11 means minus 42 हो गया. minus 42 plus 6 means हो गया 10 raised to minus 36. And तो इसका प्रोडक्ट हम लोग अगर करेंगे तो दैट प्रोडक्ट आई एम गेटिंग एज ए what I am getting here 96.5 into 10 raised to minus 36. It is angular momentum. Angular momentum है तो इसका मतलब now I have to write its unit and its unit is nothing but Newton meter second. Clear? Okay. Then problem number 7 again out of syllabus.
देन प्रॉब्लम नंबर 8 भी नहीं है शायद सिलेबस में. प्रॉब्लम नंबर 8 इज ऑल्सो नॉट देयर इन द सिलेबस. लेकिन अगर आपको याद होगा तो ऑसिलेशन फैक्टर में हमने एंगुलर एसिलेशन में कंसेप्ट देखा था, अगर याद हो तो. एंड इन दैट एंगुलर एसिलेशन हमने देखा था द पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग मैग्नेट T is equal to nothing but 2 pi under root of I upon mu B. When mu is called as a magnetic dipole moment, I is the moment of inertia and B is nothing but the magnetic induction. तो हमारा oscillation में ये फॉर्मूला हुआ है, तो you can solve this problem, right? अभी आपको क्या कह रहा है? You have given magnetic moment means mu कितना दिया है म्यू 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 एंड पर मीटर स्क्वायर. इसके बाद आई दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाउ मच 7.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 7.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 kg मीटर स्क्वायर. एंड यू हैव गिवन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. आपको बी फाइंड आउट करना है. You have given that your needle is performing 10 oscillation in 6 seconds. So 10 oscillation in 6 seconds means you can say that period T is equal to number of oscillation divided by time. That is 6 upon 10. 6 upon 10 is 0.6. That much is the period. Clear? Now you can use in the formula. ये आपका फॉर्मूला है और मुझे निकालना है. अगर मुझे b निकालना है तो व्हाट आई डू स्क्वायरिंग ऑफ आंसर. स्क्वायरिंग करने के बाद मुझे क्या मिलेगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर i अपॉन mu. तो इसका मतलब आई विल राइट डाउन b इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर i अपॉन mu t स्क्वायर. बराबर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे. 4 into 5 into 3.142 bracket square. I is 7.2 into 10 raised to minus 7. Mu कितना दिया है 2 into 10 raised to minus 2. Period कितना कैलकुलेट किया है 0.6. उसका स्क्वायर मीन्स 0.36. बराबर. नाउ 0.36 into 2 तो उसको मैं लिख सकती हूँ 0.72. उस 0.72 को मैं और रिड्यूस करके 7.2 लिखूंगी एंड 10 रेज़ टू माइनस 2 बना दूंगी. तो ये 7.2 7.2 कैंसिल, माइनस के न्यूमरेटर में जाके प्लस के. तो व्हाट आई एम गेटिंग 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.142 का स्क्वायर into 10 raised to minus. यहाँ पे अगर मुझे अप्रोक्सीमेट आंसर कैलकुलेट करना पड़ा तो इन अप्रोक्सीमेशन व्हाट आई कैन से दैट पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 10. लेकिन अगर आपको उसका स्क्वायर करना है तो पाई स्क्वायर करेंगे. मैं आपके मेरे मोबाइल पे करके बोलती हूँ आपको. मेरा पाई स्क्वायर मीन्स 3.142 मल्टीप्लाइड बाय 3.142. तो मेरा 9.872. 4 multiplied by 9.872 multiplied by 10 raised to minus 4. चलिए सॉल्व करेंगे. 4 2 are 8, 4 7 are 28, 2 कैरी 32 plus 2 34 3 कैरी और यहाँ पे आ गया 39. तो मेरा आंसर आ गया 39.488 into 10 raised to minus 4 मीटर पर मीटर. क्लियर. तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम कहाँ है मैग्नेटिक मटेरियल में, लेकिन फॉर्मूला कहाँ से यूज किया है ऑसिलेशन चक्र से. तो ऐसे फिजिक्स में हम लोगों को फॉर्मूला लिंक करना पड़ता है. क्लियर. ओके. प्रॉब्लम नंबर 9 इज आउट ऑफ सिलेबस. प्रॉब्लम नंबर 10 इज ऑल्सो आउट ऑफ सिलेबस. नाउ डायरेक्टली आई विल गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 11. एक्चुअली वैसे प्रॉब्लम नंबर 11 का भी फॉर्मूला नहीं दिया है.
वो भी आउट ऑफ सिलेबस है, बट मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता सकती हूँ, दैट इज योर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये शॉर्टकट फॉर्मूला। तो व्हाट आई कैन से दैट psi p is equal to constant, means what I can say that psi1 p1 is equal to nothing but psi2 p2, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे हमने बॉयज का देखा P is inversely proportional to V, तो PV is constant, इसका मतलब P1 V1 is equal to P2 V2, ऐसे ही लिखा है, कुछ नहीं। क्लियर? तो अभी मेरा प्रॉब्लम क्या है? susceptibility psi at 27 degrees Celsius. At what temperature susceptibility is psi by 2? Susceptibility is psi. Psi1 is psi. Temperature 27 degrees Celsius. उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। Means 27 plus 273. इनको आ जाएगा 3. Is equal to psi2. कितना है psi by 2? At what temperature? Both sides will get cancelled. 3 will comes in multiplication. So 900 is nothing but T2. But what is that? Degree Kelvin. So degree Celsius में निकालना तो what I say? T2 is equal to 900 minus 273, which is equal to 627 degrees. That is nothing but your final answer. अभी क्यूरियोसिटी अगर आपको है तो मैं बताऊंगी ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। इस फॉर्मूला के लिए मैग्नेटिज्म फील्ड में एक क्यूरी लॉ है। अभी वो सिलेबस में नहीं, आपको क्यूरी लॉ। व्हाट दिस क्यूरी लॉ सेज दैट? क्यूरी लॉ सेज दैट योर मैग्नेटाइजेशन is directly proportional to magnetic induction and inversely proportional to temperature. ऐसे आपका क्यूरी लॉ है, is it right? अभी इसमें हम लोग यहाँ पे instead of this b, I can put the value. मेरे पास एक फॉर्मूला है, b is equal to mu 0 mu r h, ऐसा फॉर्मूला। Is it right? So if I put that, और मेरे पास m का भी एक फॉर्मूला है, m is equal to mu h, mu 0 h, ऐसा एक फॉर्मूला। If I put that both the formulas, so what I am getting here, mu 0 h directly proportional to mu 0 mu r h upon t. So mu 0 h cancel. Is it right? And now I am getting that. ये t यहाँ पे आता है. So what I am getting there as your this, ये जो फॉर्मूला है आपका, मैंने बराबर लिखा है ना b का फॉर्मूला, जस्ट वेट, अभी चेक द फॉर्मूला। हमने सॉल्व किया है वो फॉर्मूला, तो सॉल्यूशन में हमको इस टाइप का फॉर्मूला मिला है। m के लिए, सॉरी, m के लिए मेरा फॉर्मूला है यहाँ पे psi h, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला है psi h, तो मेरा सिर्फ h कैंसिल होगा। तो h कैंसिल होने के बाद मुझे क्या मिलेगा? psi इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mu अपॉन mu is a constant. Mu is a constant means what? Psi is inversely proportional to clear? तो ये हम लोगों को ये फॉर्मूला ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये फॉर्मूला कहाँ से मिलता है? दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द सीरीज। गॉट इट? और यहाँ पे इस चैप्टर के सारे प्रॉब्लम्स फाइन। ओके, यहाँ पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया है देखो, एंड दैट एमसीक्यू क्वेश्चन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ आपका वही ऑसिलेशन वाला पीरियड वाला लॉ, दैट इज पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन म्यू डी, उसी फॉर्मूला का है। तो आपका एमसीक्यू देखो, योर एमसीक्यू नंबर 1, उस एमसीक्यू नंबर 1 में आपको दिया नॉट 1, एमसीक्यू नंबर 4,
rectangular magnet is suspended freely has a period of oscillation equal to 2. एक rectangular magnet है, उसका लेंथ सपोज कैपिटल एल है, उसका पीरियड है टी. अभी उसको ब्रेक किया हाफ में, मींस उसका लेंथ हो गया एल बाई टू. सो एट दैट टाइम व्हाट विल बी ये मुझे निकालना है. Is it right? If your magnet is set into rotation. अभी जब मैग्नेट का ये एल है, is it right? So at that time I can find out its moment of inertia. तो जब आपका मैग्नेट एक्सिस पे रोटेट होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा एंड इज द मास एल से एल स्क्वायर बाय 4. एंड सेकेंड टाइम जब उसका लेंथ एल बाय 2 में रिड्यूस हो जाएगा तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिफरेंस रहेगा एल बाय 4. तब इसका आई डैश होगा वहां पे मास. अभी क्या होगा आपका your m dash mass I can say as a m dash mass. Is it right? तो ये हो गया आपका m dash mass एंड यहाँ पे हो जाएगा l square by 16. Is it right? So now what I'm going to say that अगर मैंने वहाँ पे कंसिडर किया broken into two equal parts, तो मास भी हाफ हो गया है. ओके, तो अभी आई राइट फॉर्मूला T अपॉन T डैश इज इक्वल टू T का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन म्यू V डिवाइडेड बाय, अभी म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट तो उसको बोलेंगे म्यू डैश. यहाँ पे मैं म्यू निकालूंगी. पहले म्यू इस मैग्नेट का क्या आएगा, इट इज नथिंग बट the dipole moment small m into L और यहाँ पे म्यू डैश क्या आएगा, dipole moment m into L by 2 ऐसा आएगा. यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन यहाँ पे म्यू डैश डी, यहाँ पे आई डैश. दोनों का रेशो लिया तो इसका डी डी गेट कैंसिल. मुझे क्या मिलेगा, टी अपॉन टी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई अपॉन आई डैश इनटू व्हाट आई से दैट म्यू डैश अपॉन डी. इज इट राइट? तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ आई की वैल्यू क्या है देखो, m L square by 4 divided by m dash L square by 16 into mu dash है मेरा small m L by 2 divided by small m L. यहाँ पे small m कैंसल, यहाँ पे L square कैंसल, ये L कैंसल, यहाँ पे आएगा 2. मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए m अपॉन m dash. ओके, ये 16 ऊपर जाएगा तो 4 by 1 into 1 by 2. इज इट राइट? तो ये आ जाएगा मेरा 2. इज इट राइट? अगर मेरा वहां पे 2 आ गया, ये सारा लिखूंगा तो 16 न्यूमेरिकल से गया तो दैट विल बी 4. तो what I am लिखें 4 न्यूमेरिकल में जाएगा तो 4 by 2 वो आ जाएगा 2. और फिर मास भी यहाँ पे हाफ हो गया तो ये 1 by 2 आएगा. तो 1 by 2 आ गया तो what I am लिखें here m divided by m by 2 into 4 आ गया into 2. तो व्हाट आई एम गेटिंग ये m कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो रूट 4 का मतलब है 2. तो मेरा t डैश will be coming as a t by 2. So that will be coming as a 1 by 2.
दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो ऐसे हम लोग फिजिक्स में, ऐसा नहीं है ये मैग्नेटिक मटेरियल पे तो इसके ही प्रॉब्लम रहेंगे, कुछ इंटररिलेट फॉर्मूलाज करने पड़ते हैं। तो योर लास्ट आंसर विल बी कमिंग, एमसीक्यू का आंसर आएगा, न्यू पीरियड विल बी हाफ ऑफ द ओरिजिन। क्लियर? दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट? तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस कवर। चलो, थैंक यू।